Hello everyone. So today we will solve the paper of NFL Management Trainee Electrical. Okay, it held on I think 24 May 2021, either 18 February 2021. So I don't know the time. So this is a 2021 paper. यानी कि इसी साल आपका पेपर हुआ है NFL Management Trainee का. Okay, so we will solve this question paper. So this is the question paper, and the first question is here: a three-phase 400 volt 50 hertz 4-pole induction motor. It's fed F. It's fed from a three-phase supply and runs off 1425 RPM. The frequency of the rotor EMF. Okay, so you know that the formula is FR equal to SF. Yeah. So here is the answer that you know that very well. 1 second. The formula is FR equal to SF. You know. Okay. Here, and first we have to find the ns 120 f upon p. We get the synchronous speed. After that we have to find the slip, ns minus nr upon ns, and after we get the slip we have to put here in the formula fr equal to sf. Okay, now next question is that use Mason gain formula to find the transfer function of the given figure above. Okay, so you have to find the transfer function. As you know that there are, this is a forward part, means G1, and G2 is the forward part. Okay, now we have to find the loop. What is the loop here? Okay, so you know the formula, that forward part upon delta, and delta is the 1 minus the loop. Okay, what is the loop? So 1 plus y plus is here, because in formula 1 minus is here, and the feedback path is also minus. Okay, so 1 plus, so 1 plus g1h. Okay, this whole g1 into h plus, and this one loop g2 into h. Okay, so answer is here g1 plus g2 upon 1 plus g1h plus g2h. Okay, frequency here. This is a transfer function we have to find. Cs upon Rs. G1 and G2 is the forward path, and 1 plus G1H plus G2H is the G1H is the loop 1 and G2H is your loop 2. And no non-touching loop, so G1 and G2. Next question. In a digital voltmeters, a signal conditioning circuit is used. Okay, तो सिंगल कंडीशनिंग सर्किट का यूज जो होता है, इट यूज टू ब्रिंग द वोल्टेज टू अ सुटेबल लिमिट. ओके, तो यू अंडरस्टैंड द डिजिटल वोल्टमीटर में सिंगल कंडीशनिंग सर्किट आप देखते होंगे, उसका यूज क्या करता है, वोल्टेज को सुटेबल लिमिट तक पहुंचाने के लिए हम सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट का यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. A resistance R is measured using the connection shown in the above figure. The current measured is this question you can read. Okay, but in this question one uh, line is missing. I will show you the how we can solve this. Okay, now I can show you that. 1 second. Okay, this is the question. Okay, you have to scale division is missing in this question. Okay, and this is the okay way to solve this question. We have to find the first reading error of voltmeter, reading error of ammeter, total error of voltmeter. Okay, and then total error of ammeter. After that total systematic error, then meter resistance, then error. You know that Rm minus RT upon RT. After that you will get the solution, I think 0.11. But firstly, when you solve like this, you need the scaling. Okay, I think 1 by 10 scaling is missing in this question. Okay, if you use the 1 by 10, if you type this question, I think on the Google, or this is a
previous year's question. Okay, conventional. So one scale is missing in this question. Okay, so you can solve like this if the 1 by 10 scale is given, because if you are finding the reading error, then you have to use 1 by 10 scale, 1 by 10 scale. After that, total error, total systematic error, and RM and RT. What is the correct relation? We know that tera is greater than giga is greater than mega. Next question is that two capacitors of each breakdown voltage 500 volt are connected parallel. What will be the breakdown rating of the combination? We know that in parallel combination the voltages remain same, so 500 volt is the answer. Next is, if the peak voltage is 9 volt, calculate the peak to peak voltage. So peak to peak voltage means from here to, from negative peak to maximum peak, means 2 bm. So 2 bm is the 2 into 9, which is equals to 18 volt. Now calculate the EMF when the flux is given by 3 sin t plus 5 cos t. Okay, so we know that E equals to minus n d phi by dt. Okay, this is the formula we already know. 1 second, I have to reach at the top. Okay, here is the solution. E equals to minus n d phi by dt, yeah, minus d lambda upon dt. So d upon dt 3 sin t plus 5 cos t. Okay, when we differentiate this equation, then we get inside minus, so minus is outside, minus 3 cos t minus 5 sin t. Sin t means cos t, differentiation cos t is minus sin t. And when we opened this, okay, bracket, then answer is our minus 3 cos t plus 5 sin t. You can read here also that digital voltmeter, okay, question, digital multimeter question, that signal conditioning circuit, it converts the input signal into a voltage of suitable limit. That's the answer. And this is done so that the voltmeter can read the magnitude of the signal correctly. ओके, वोल्टमीटर अच्छे से आपका सिग्नल को करेक्टली पढ़ सके, उसके मैग्नीट्यूड को, इसीलिए हम सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट को यूज करते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ चार्ज q is 3t square, this is square, okay, plus 2, then current is given by, we know that I equals to dq upon dt, है ना, we know that. So we have to differentiate this charge equation. So charge equation we can differentiate d upon dt, okay, and 3t square plus t. So we will get the answer 60. 60 is the answer. A double squirrel cage induction motor has, so double squirrel cage induction motor, you know that two parallel windings in the rotor. Okay, now you can see here two parallel windings in rotor. Okay, one is outer cage winding, one is inner cage winding. Next is calculate the peak to peak voltage if B max equals to 1 volt and B min equals to minus 1 volt. Yeah, okay, so the question is this one, and we know that B peak to peak is B max minus B minimum, and B max is 1 volt and B minimum is minus 1 volt, so 1 plus 1 is 2 volt, which is true in the case of Butterworth filters. Okay, the option are given here, not this is a like paper is that. So all of this is the option. And what is the Butterworth filters? So a Butterworth filter is the type of signal processing filter designed to have a frequency response as flat as possible in the passband. So जो passband होता है, बटरवर्थ फिल्टर का काम क्या है कि एक सिग्नल प्रोसेसिंग फिल्टर है एक प्रकार का, और उसको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हो वो बिल्कुल फ्लैट हो. ओके, इट्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स विल बी फ्लैट एज पॉसिबल. Hence the Butterworth filter is also known as maximally flat magnitude filter. इसीलिए बटरवर्थ फिल्टर को हम
मैक्सिमम फ्लैट मैग्नीट्यूड फिल्टर भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर इस प्रकार ही है, तो क्वेश्चन एक ही साथ आपको दिख रहे होंगे सारे, इसलिए the Q point of the Jenner diode in the circuit shown above is, ओके मैं जूम कर देता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है, ठीक है, एक 20 वोल्ट का सोर्स, एक जेनर डायोड, एक 3.6 किलो ओम। अब हम आंसर देखते हैं इसका। सो ये आंसर है आपका। ओके, एक क्वेश्चन था आपका, इस क्वेश्चन में आपको की पॉइंट पूछा, आपसे पूछा गया है द क्यू पॉइंट ऑफ द जेनर डायोड इन द सर्किट शोन अबव इज। ओके, वी हैव टू फाइंड द क्यू पॉइंट का मतलब क्या हुआ, यू हैव टू फाइंड द करंट एंड द वोल्टेज। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड टोटल वोल्टेज या फिर थेवेनिन वोल्टेज, वी कैन से दैट अक्रॉस द 3.6 किलो ओम। पैरेलल है पूरा, तो 20 वोल्ट हम लगा सकते हैं। सो 3.6 इंटू 20 अपॉन 11 प्लस 3.6, ओके आपका आंसर आएगा 4.93 वोल्ट, जो कि आपके जेनर डायोड के वोल्टेज से ज्यादा है। ओके, टोटल रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, 11 पैरेलल है आपके 3.6 किलो ओम से, तो 2.71 किलो ओम आपका क्या आएगा टोटल रेजिस्टेंस। अब आपको जेनर डायोड का अक्रॉस करंट फाइंड करना है, क्योंकि आपसे क्यू पॉइंट पूछा गया है। ओके, तो क्यू पॉइंट्स में जब आप जेनर का करंट निकालेंगे तो 4.93 जो हमने निकाला था टोटल वोल्टेज माइनस 4, यानी कि जेनर के अक्रॉस का वोल्टेज अपॉन दैट रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो आपका आंसर आएगा 0.34 मिली एम्पियर। तो 0.34 और 4 वोल्ट आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट है assertion एक रीजन the phase angle plot in Bode diagram is not affected by the variation in the gain of the system। ये बिल्कुल सही बात है। ओके, but the variation in the gain of the system has no effect on the phase margin of the system। ये गलत है, क्योंकि जो गेन में अगर वेरिएशन होगा तो फेज मार्जिन के अंदर भी आपका क्या होगा, वेरिएशन का असर दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है कि द लीकेज करंट थ्रू द शंट एडमिटेंस इज। ओके, तो जो लीकेज करंट होता है शंट एडमिटेंस के जो पास होता है वो मैक्सिमम होता है आपके सेंडिंग एंड की तरफ। ओके, सो आंसर इज मैक्सिमम एट द सेंडिंग एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, मैं इसको जूम कर देता हूं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपका सर्किट है पूरा। ओके, और हियर इज द आंसर। इसका आंसर देखिए, आप पढ़ भी सकते हैं इसका, जो लीकेज करंट वाला आपका क्वेश्चन था कि जो सेंडिंग एंड पे मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि द करंट डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली एज इट मूव टुवर्ड्स द रिसीविंग एंड ऑफ द लाइन एंड बिकम्स जीरो एट द रिसीविंग एंड। इसीलिए जो आपका रिसीविंग एंड की तरफ क्या हो जाएगा, करंट बिल्कुल जीरो की तरफ हो जाएगा, लेकिन सेंडिंग एंड पे क्या होगा आपका, शुरू में इट विल बी द मैक्सिमम। नाउ जो हमने अभी क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 66, उसका आंसर देख सकते हैं आप। लूप जब आप सॉल्व करेंगे इसमें, तो 10 माइनस 5i प्लस 5 माइनस 2i प्लस वो माइनस 20 माइनस 3i। ओके, सो आफ्टर दैट इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद i की वैल्यू क्या आएगी आपकी, माइनस 0.5 एम्पियर, और माइनस 0.5 एम्पियर आपका क्या है, आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो आप इसका रिलेशन अच्छे से जानते होंगे, B इक्वल्स टू μH होता है, ये आपका आंसर है। इनपुट रेंज क्या होता है डिजिटल वोल्ट मीटर का, 1 वोल्ट से 1000 वोल्ट होता है। Which of the following instrument indicates the instantaneous values of the electrical quantity being measured at the time at which it is being measured। तो जब भी इंडिकेट की बात आए, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, ठीक है। इंडिकेट्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू कौन करता है, आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आपको निकालना है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का, और फॉर्मूला क्या होता है, BS माइनस BR अपॉन मैक्सिमम PR। तो BS आपका क्या है, 160 माइनस 132 अपॉन 132, तो आंसर आएगा कब, 21.21%।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो आप क्या करना कि पेपर डाउनलोड करते हुए साथ में चलना, आप सॉल्यूशन देखते रहना कि हो सकता है ये क्वेश्चन एक ही साथ टाइप्ड है, ओके, अलग अलग है नहीं जैसे नॉर्मल पेपर होते हैं। 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस है और 1/2 वॉट का क्या है आपका पावर क्या है उस रजिस्टर की 1/2 वॉट, ठीक है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। आपसे पूछा है कंबाइंड रेजिस्टेंस और वोल्टेज वैल्यू क्या होगी, तो आप जानते हैं सीरीज में दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि 2 किलो ओम तो आपका रेजिस्टेंस हो गया और पावर भी क्या हो जाएंगे ऐड, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा आपका 1 वॉट, तो 2 किलो ओम और 1 वॉट आपका आंसर होगा। The equation f of x as x cube minus x square plus 4x minus 4, considering the initial approximation at x equals to 2, then the value of the next approximation correct up to 2 decimal places is given as. So in this question आप न्यूटन रेफसन मेथड जब आप अप्लाई करेंगे तो आप न्यूटन रेफसन मेथड का फॉर्मूला जानते हैं अच्छे से, x1 इक्वल्स टू x नॉट प्लस f ऑफ x नॉट अपॉन f टेस्ट x ऑफ x नॉट, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें आपको इनिशियल गेस दिया हुआ है, यानी कि x नॉट की वैल्यू आपको 2 दी है, ओके, ये आपका क्या है इनिशियल गेस है। f ऑफ x नॉट जब आप सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपका 8 और f डैश x नॉट 12 आएगा, ओके, अब केवल डिफरेंशिएशन करना है। अब जैसे ही आपकी ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी तो आपको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, और x1 आपका फॉर्मूले में था तो x1 की वैल्यू आपकी क्या आएगी 1.33। क्वेश्चन वेरी सिंपल है, न्यूटन रेफसन मेथड का अप्लाई करना है, फॉर्मूला ये है आपके सामने, इनिशियल वैल्यू आपको गिवन है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वैल्यू f ऑफ x नॉट निकालना है, यानी कि x नॉट की वैल्यू पुट करनी है आपको किसमें, आपको जो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर देना है, तो इस डिफरेंशिएशन में आपको दोबारा से क्या पुट करना है, वैल्यूज पुट करना है, तो 12 आपकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे आपका f डैश x नॉट की वैल्यू 12 आएगी, आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडरिंग द ब्लॉक डायग्राम शोन above, if the transfer function of the system is g1 g2 plus g2 g3 upon 1 plus x, तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, p1 यानी कि पाथ 1 यानी कि फॉरवर्ड फंक्शन आपका क्या है g1 g2, देख सकते हैं ये रहा g1 है ये g2 है, सेकंड आपका g3 है और g2 है, देखिए, ओके, नेक्स्ट लूप क्या है आपका, ये आपका लूप है g3 सॉरी g2, ये g2 है आपका और g4, मैं जूम कर देता हूं, सो दिस इज द आंसर। सो आपका x क्या हो गया, दिस इज x, so x is the g2 and g4 and g2 g4 is your answer. Which method is used for improving the system stability, ऑप्शन पता नहीं क्या होंगे, so all of these इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन हो सकते थे जैसे रिएक्टेंस को इंप्रूव करना, वोल्टेज को इंक्रीज करना, ओके, which is the one of the criteria of selecting particular generator transformer, so on load tap changing transformer, okay, what is the percentage voltage regulation, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया अभी 21.21 वाला, in a 5 kV 400 volt 75 kVA single phase transformer, the current flowing in the primary winding of transformer is 10 ampere, what will be the current flowing in the secondary winding, okay, very simple question, B1 अपॉन B2 हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से IS अपॉन IP होता है, ओके, IS आपको क्या गिवन है, B1 कितना गिवन है आपको 5000 एंड B2 इज 400 एंड IS अपॉन 10, IS आपका कितना आएगा 125 एम्पियर। अकॉर्डिंग टू सिग्नल फ्लो ग्राफ which represents the relationship between nodes by drawing a line between them, so ब्रांच होता है, ठीक है, जो आपको रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन दी नोड्स, और जो आप लाइन को ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार की, ओके, the stator of a phase shifting transformer for use in conjunction with an AC potentiometer usually has a, तो इसका आंसर होगा 2 phase winding, ओके, 100 millivolt 5 milliampere dearsenable movement is used to be
used in a ammeter whose full scale reading is 1 ampere, calculate the value of RA. तो जैसा कि हम देख रहे हैं फुल स्केल रीडिंग आपको गिवन है 1 एम्पियर और 5 मिली एम्पियर डीआर गैल्वेनोमीटर है उसके थ्रू आपकी जा रही होगी। ठीक है, तो हम समझ गए कि 995 मिली एम्पियर हमको आउटपुट की तरफ निकलती दिखाई दे रही होगी, यानी कि जो आपका आर है रेजिस्टेंस जो है उधर से आपकी डाइवर्ट हो रही होगी कितनी 995 मिली एम्पियर। अब हम जानते हैं बी इक्वल्स टू वाई आर, वोल्टेज आपको गिवन है 100 मिली वोल्ट और करंट हमारा आ गया है 995 मिली एम्पियर इंटू आर ए। तो आर ए की वैल्यू कितनी आएगी अप्रोक्सीमेट 0.1 ओम। इसको सभी जानते हैं, एफ इक्वल्स टू क्यू ई आपका फॉर्मूला होता है। What is the significance of the balance equation on losses? So it independent of losses in inductance. Okay, we know the formula of characteristics impedance for loss free transmission line, Z equals to under root L upon C. जब n रेजिस्टेंस हो बहुत सारे एंड इट कनेक्टेड इन पैरेलल और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस उसका x हो, when these n resistance are connected in series, what would be the total resistance? जब वो सीरीज में कनेक्टेड हो जाते हैं तो हम जानते हैं कि जितने भी मल्टीपल हैं जैसे 2 ओम 2 ओम 2 ओम सीरीज में कनेक्टेड है तो उन सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 to the 4 to the 8 ऐसे ही चलते रहेंगे, तो मतलब स्क्वायरिंग हो रही है उनकी, तो n स्क्वायर x आपका क्या होगा आंसर होगा। अगला है the voltage drop across a standard resistance of 0.2 ohm is balanced at 83 centimeter. Find the magnitude of the current if the standard cell EMF of 1.53 volt is balanced at 42 meter. देख लेते हैं क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन गिवन है तो हम जान सकते हैं इसमें क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ हम निकाल लेंगे, मतलब 1.53 हमको सेल ईएमएफ दिया है, ठीक है, और उसकी लेंथ के अक्रॉस की वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी 1.53 अपॉन 42, यानी कि 0.036 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब वोल्टेज ड्रॉप 83 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना होगा, वो इसका मल्टीप्लाई हम 83 सेंटीमीटर से कर देंगे तो 2.99 वोल्ट हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा। हमको फाइंड करना है करंट, तो 2.99 83 सेंटीमीटर के अक्रॉस ड्रॉप था अपॉन 0.2 हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है तो 14.95 एम्पियर इज द आंसर। नेक्स्ट है which device is most suitable for the high frequency application? MOSFET which is used up to the 100 kilohertz. कौन सा ऑक्सिलोस्कोप इज यूज्ड इन अ डिजिटल स्टोरेज ऑक्सिलोप, डीएसओ जो आप जानते हैं आपने लैब में यूज किया होगा, वो आपका कन्वेंशनल टाइप होता है, ठीक है। द केबल ट्रांसमिशन लाइन कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर्स विद डाइलेक्ट्रिक। व्हेन अ ट्रांसमिशन लाइन हैज अ लोड इंपीडेंस सेम एज दैट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ZL इक्वल्स टू ZC, उसी को हम क्या बोलते हैं मैच्ड इंपीडेंस या मैच्ड लाइन भी बोलते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन है कि आपको ये क्वेश्चन दिया है फॉर द सर्किट शोन अबव डायोड कट इन वोल्टेज आपको 0 है, ठीक है। द रिपल वोल्टेज आपको गिवन है 4 वोल्ट, लोड रेजिस्टेंस आपका मिनिमम है दैट कैन बी कन्वर्टेड टू द आउटपुट इज, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RL। ओके वन सेकंड, ओके, सो बी रिपल का फॉर्मूला होता है B max upon F into RL into C. We have to find the value of RL. Okay. So RL is the B max upon B ripple into F into C. All values are given in the circuit. We have to find the value of only RL. So 6.25 is the answer. Next is what is the size of the submatrix H of the Jacobian if N1 is the number of PV buses and N2 is the number of PQ buses? Answer is N1 plus N2 का whole square. When you are reading this type of questions like N1 is the number, N2 is the number of PQ buses. Okay, in a power system, so many formulas are there. Okay, N1 plus N2 is for different thing. N1 into N2 is for different thing. Under root of N1 plus N2 is the different thing. Okay, you can read this question.
in a power system. Okay, this is a circuit is given in your paper. The question asked is calculate the potential difference between x and y as per the image above. तो हम इधर से बी एक्स निकाल सकते हैं, ओके, और इधर से क्या निकाल सकते हैं, बी वाई निकाल सकते हैं। और हमको निकालना क्या है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बी एक्स माइनस बी वाई हमको फाइंड करना है। तो नोडल एनालिसिस लगा देते हैं इस नोड के अक्रॉस और इस नोड के अक्रॉस। तो बी एक्स प्लस 3/3 प्लस बी एक्स अपॉन 5, ठीक है। तो बी एक्स आ जाएगा -15/8। नेक्स्ट बी वाई -4/2 प्लस बी वाई अपॉन 3 यानी कि बी वाई आ जाएगा 12/5। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो -4.275 आपका आंसर आएगा। देख सकते हैं आप। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आया, n नंबर ऑफ बसेस है, द पावर सिस्टम साइज ऑफ y बस मैट्रिक्स इज n क्रॉस n। ओके, ऐसे सिंगल क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछ लेता है। पीक टू पीक वोल्टेज हम देख चुके हैं, 2 VP होता है। ओके, फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई है 35 even TS occur in 7 seconds. You have to divide the 35 upon 7, so you will get the frequency of the system. एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो सिस्टम होता है वो 345 से 765 किलोवोल्ट के बीच रेंज लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है पावर फ्लोइंग इन अ 3 फेज, 1 सेकेंड, 97 number question. In a 3 phase 3 wire system is measured by 2 watt meter whose readings are 7000 watt and -2500 watt. If the voltage of the circuit is 400 volt, then what will be the value of capacitance introduced in each phase to make 1 watt meter reads 0? The frequency is 50 Hz. Okay, so here is the solution. The question is labeled tough. Okay, first you have to find the value of total power. Okay, after that power in each phase. Okay, after that you have to find the voltage of each phase, then cos phi, then current in each phase, impedance, resistance, reactance. Now 1 watt meter reads value of 0, तो पावर फैक्टर हो जाएगा 0.5। tan phi की वैल्यू होती है x अपॉन r, तो इधर से आप निकाल लेंगे x यानी कि रिएक्टेंस की वैल्यू। हम जानते हैं हमको कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए, तो x क्या होगा आपका टोटल रिएक्टेंस माइनस जो आपने निकाला है अभी। ओके, x क्या होता है 1/2π fc, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन 1/2π f xc। तो आंसर इज द 668.6 माइक्रोफैरेड। बेसिकली अ पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस, तो आप जानते हैं कंपेयरिंग द टू वोल्टेजेस। A long straight wire of radius carries a steady current. The current is uniformly distributed over its cross section. The ratio of the magnetic fields B and B dash at radial distances AY2 and 2A from the axis of the binding R. Okay, तो आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन ये है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो BDL आप जानते हैं स्मॉलर लूप का आपको A/2 रेडियस दिया हुआ है, यानी कि 2πr क्या हो जाएगा रेडियस A/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो म्यू0 I/4 हो जाएगा। नेक्स्ट B1 जो है आपका म्यू0 I/4π ये हो गया, ठीक है। अब B डैश क्या गिवन है आपको इंटू रेडियस क्या हो गई आपकी 2a, B डैश इंटू 2π इंटू 2a, तो म्यू0 I हो गया, ठीक है। तो दोनों का जब आप डिफरेंस निकालेंगे यानी कि B/B डैश का, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा आपका 1। मल्टीमीटर कैन बी यूज्ड, तो मल्टीमीटर कैन बी यूज्ड फॉर डीसी वोल्टेजेस कनेक्टिंग। हम क्या करते हैं जब वोल्टेज के केस में सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। A system has poles of 0.01 हर्ट्ज। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको 1 हर्ट्ज एंड 80 हर्ट्ज, 0 सेट 5 हर्ट्ज दिया है, तो 20 हर्ट्ज के लिए आपका क्या हो जाएगा -90 डिग्री।
तो चार्जेस है 1 कूलम से -4 कूलम, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा आपका? इट टूवर्ड्स द 1 कूलम टू -4 कूलम। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ओके, आपसे कैलकुलेट द हिस्टेरेसिस वोल्टेज आपसे पूछा गया है, आपको एक गिवन फिगर है, ठीक है। सबसे पहले आपको थ्रेशोल्ड वोल्टेज निकालना पड़ेगा, यानी कि अपर और लोअर। तो बी सैचुरेशन इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 और माइनस बी सैचुरेशन R1 अपॉन R1 प्लस R2 आपके अपर और लोअर है, ठीक है। 25 मिलीवोल्ट आ गया, इधर भी -25 आ गया। हिस्टेरेसिस वोल्टेज आपका होता है अपर माइनस लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो 50 मिलीवोल्ट आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पॉज कर करके आप आसानी से आंसर देख सकते हैं। पक बूस्ट का फॉर्मूला पूछा है तो क्या हो जाएगा? D इंटू बी इन अपॉन 1 माइनस डी। करेक्ट स्टेटमेंट आपसे बोला गया है। तो मॉसफेट हैज लोएस्ट स्विचिंग लॉसेस एज कंपेयर टू अदर डिवाइसेस। आपसे पूछा यूजुअल स्पैन क्या होना चाहिए, यानी कि लेंथ आरसीसी पोल की 80 से 150 मीटर्स। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप देख के पता लगा सकते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं आपके। तो आरसीसी पोल, स्टील टॉवर्स, ये भी आप देख लेंगे लेंथ इनकी क्या होती है। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो डाइवर्जेंस इक्वल टू 0। ये रिप्रेजेंट करती है आपकी गॉस लॉ को मैग्नेटिक फील्ड के लिए। बीच स्टोन ब्रिज में द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस, तो करंट क्या गैल्वेनोमीटर से निकलेगा आपका? 0। आप इसको जानते हैं अच्छे से, तो 0 एम्पियर। ईएमएफ आपसे पूछा है तो एन माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, कुछ नहीं करना, एन दिया है और आपको फाई की वैल्यू भी क्या है? गिवन है, तो -30 आपका आंसर हो जाएगा, केवल मल्टीप्लीकेशन होगा। 8 लाइन टू 1 लाइन मल्टीप्लेक्शन में आपकी सिलेक्ट लाइंस कितनी होती है? 3 सिलेक्ट लाइंस होती हैं। What is meant by creepage distance? Creepage distance का मतलब होता है shortest distance between two conductors conducting parts along the surface of the insulating materials. उसको हम क्या बोलते हैं? creeping या creepage distances. F equals to cy lambda, ये आपका रिलेशन होता है। ओके, ब्लॉक डायग्राम इज यूज्ड टू एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। और ब्लॉक डायग्राम आल्सो प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिस्टम, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ व्हिच पैरामीटर एग्जिबिट्स अ इनवर्स रिलेशनशिप? तो आप जानते हैं इनवर्स रिलेशनशिप आपका कौन सा करता है? 1 अपॉन डी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम डिफरेंशियल एलिमेंट टू द पॉइंट। इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं है, आपको केवल नोट पे देखना है करंट इनकमिंग और आउटगोइंग। 2 बल्ब्स आपके हैं मार्क्ड हैं 200 वॉट 250 वॉट 100 वॉट 250 वोल्ट, दोनों ज्वाइन है सीरीज में 250 वोल्ट के अक्रॉस। आपसे पूछा है व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड। पावर कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे पहले बल्ब का, फिर सेकंड बल्ब का, दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 1875 अपॉन 2, फिर P इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर अप्लाई करना है, 67 वॉट आपका आंसर आ जाएगा। Those magnetic properties materials are best suited for making armature and transformer cores which have high permeability and low hysteresis losses. The question बहुत सिंपल, आपको एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव पोलरिटीज आपको गिवन है ट्रांसफार्मर की, यानी कि B1 प्लस B2 जो होगा आपका वो 1840 आपको गिवन है और B1 माइनस B2 आपको 1810 गिवन है। तो B1 सॉल्व कर लेना और B2 दोनों आपका आंसर आ जाएगा 1825 और 15। The internal resistance of a cell of EMF 2 volt is 0.1 ohm. It is connected to a resistance of 3.9 ohm. The voltage across the cell. तो voltage across the cell कैसे फाइंड करते हैं? E equals to I R plus R. ओके, इधर से आप करंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आफ्टर दैट आपको फाइंड करना है वोल्टेज अक्रॉस द सेल, तो B इक्वल्स टू आई आर। ओके, तो 1.95 वोल्ट आपका क्या होगा? आंसर होगा। Find the potential due to charge ring of a density 2 unit with radius 2 meter at the point at which the potential is measured is a distance of 1 meter from the ring. तो lambda a upon 2 epsilon r इसका फॉर्मूला होता है।
जब आप इसको अप्लाई करेंगे पाई का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और आंसर क्या आएगा आपका 72 पाई। ओके, you can check this question. I think something is missing also in this question. तीन रेजिस्टेंस आपके कनेक्टेड हैं सीरीज में 200 वोल्ट के अक्रॉस। यू हैव टू फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 14.5 ओम। ये रहा आपका आंसर। आर इक्विवेलेंट आप निकाल लेंगे, टोटल करंट आप निकाल लेंगे। आफ्टर दैट आपको 14.5 के अक्रॉस क्या फाइंड करना है, आपको वोल्टेज फाइंड करना है। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्रेस्ट फैक्टर क्या होता है। क्रेस्ट फैक्टर होता है पीक अपॉन आरएमएस। तो आपका आंसर क्या आएगा 5 वोल्ट। एक वायर है 12 ओम का, उसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होंगे दो पॉइंट्स के बीच। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा आपका 3 ओम, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे 6 ओम पैरेलल में। The voltage rating of long transmission line is above the 100 kilovolt. Find the total diameter of the ACSR conductor with two layers and the diameter of each strand is 3. Diameter का फॉर्मूला होगा x minus 1 into d. तो आंसर इज द 9। x क्या आपका लेयर्स है और डायमीटर आपको 3 गिवन है। सिमेट्री का क्वेश्चन है। सिमेट्री में हम क्या करते हैं, आउटपुट हमें स्क्वायर वेवफॉर्म मिलनी चाहिए। एसी फैन मोटर में आप यूज करते हैं ट्राइक के लिए। ट्राइक क्या है, 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन में वर्क करता है। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, वेरी बेसिक क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। 1 एम्पियर करंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन अ सेकंड। n इक्वल्स टू आई अपॉन ई 1/1.6, यानी कि कैसे करेंगे, q इक्वल्स टू IT होता है और q इक्वल्स टू ne होता है। इसको सॉल्व करेंगे, n इक्वल्स टू आई अपॉन ई 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 आता है। सर्ज इंपीडेंस की रीडिंग होती है ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए 400 और 600 ओम और केबल के लिए 40 ओम। सेम क्वेश्चन, लॉन्ग वायर, ठीक है, स्टेडी स्टेट करंट, इसको बैंड करेंगे सर्कुलर फॉर्म में, सीरीज फॉर्म में आ जाता है। तो n स्क्वायर बी, क्योंकि मल्टीप्लाई होता रहता है, जितनी टर्म्स उसकी बढ़ती जाएंगी। Which is applied to opposite junctions of a bridge circuit. तो सोर्स ऑफ अ करंट कुछ आगे भी आना चाहिए इसके कुछ। इन अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस पैरामीटर ऑफ द आर कनेक्टेड इन शंट और पैरेलल। आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से आपके ट्रांसमिशन लाइन कैसे रहती है, आपके कनेक्टेड रहती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन, इंपीडेंस एंड एडमिटेंस आपको गिवन है। तो Z0 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Z अपॉन बाई 1.33 इज द आंसर। कमर्शियल मैक्सिमम ब्रिज जो यूज होते हैं उनकी रेंज होती है 1 to 1000 हेनरी। ओके, आपसे पूछा है इम्पीडेंस, तो B अपॉन I। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में व्हाट डज AC ब्रिज कंसिस्ट ऑफ। आर्म्स होता है AC ब्रिज में, सोर्स होता है और एक डिटेक्टर होता है। आर्म्स में रेजिस्टेंस, इंडिकेटर कुछ भी लगा हुआ हो सकता है। The network in which RLC parameters are individually concentrated or lumped at discrete points in the circuit are called। तो आपको क्वेश्चन में ही lumped दिया है, आंसर इसका lumped। Determines the current I1, I2, I3। I1 A रहा, I2 A, I3 A। इसको देख सकते हैं n स्क्वायर बी वाले, ठीक है। पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। आपको ये वाला क्वेश्चन फाइंड करना था I1, I2, I3। तो इधर देख रहे हैं इस सर्किट पे क्या हो रहा है, I1 माइनस I2 फ्लो, और इधर क्या हो रहा है, टोटल कौन सा इनकमिंग है, इस जंक्शन पे कौन सा आ रहा है, हम चेक कर लेते हैं। तो I1, I2 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, I3 भी आ रहा है, I3 प्लस 3 भी आ रहा है, ठीक है, इधर से इस वाली साइड से। तो एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी ये वाली, सॉरी, एक क्वेश्चन आपकी पहली इक्वेशन हो गई टोटल, दूसरी हो गई ये वाली इक्वेशन, ओके, और तीसरी हो गई -11 I1 -15 I3। एक क्वेश्चन नंबर लिखा है 1 इक्वेशन, 2 इक्वेशन और दिस इज थर्ड इक्वेशन। तीनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा I1, I2, I3 की वैल्यू। क्लोज लूप गेन आपसे पूछा गया है,
ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड आपको लेना पड़ेगा। तो -3 GH अपॉन 1 प्लस GH HS आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला होता है G ऑफ S H ऑफ S 1 प्लस G ऑफ S H ऑफ S, और वही हमने किया है, तो 6/5 इज द आंसर। व्हाट इज द ऑक्सिलोस्कोप, ऑप्शंस दिए होंगे, तो वोल्टमीटर आपका क्या होगा, ऑक्सिलोस्कोप। सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर आर इंस्टॉल्ड एट विच पोजीशन, तो सेंडिंग एंड पे आप क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं। एक है आपका सिलिकॉन कंट्रोल स्विच का सिंबल है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इनेबल इनपुट ऑन अ मल्टीप्लायर चिप, तो मल्टीप्लायर चिप में टू एक्टिव द एंटायर चिप के लिए हम मल्टीप्लेक्सर चिप का यूज करते हैं। मल्टीप्लेक्सर चिप में जो इनेबल इनपुट होता है उसका काम क्या होता है, एंटायर चिप को एक्टिव करना। 3 charged cylindrical sheets are present in 3 phases. Sigma R, sigma -2 at R4 meter, sigma equals to -8 at R5 meter. तो फ्लक्स डेंसिटी आपसे पूछी है एट द R equals to 6 मीटर। ओके, गॉस लॉ आपको अप्लाई करना है, D 2 pi RL सिग्मा 2 pi RL D 2 pi into 6 Q1 plus Q2 plus Q3 चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो Q1 होता है वो आपका फॉर्मूले में आता है सिग्मा 1 2 पाई इंटू 2, ठीक है। तो रेडियस आपको क्या गिवन है, 2 मीटर है, 2 पाई आर। दूसरा सिग्मा 2 के साथ कौन सा रेडियस है, 4 मीटर, 2 पाई आर। तीसरा सिग्मा 3 के साथ कौन सा आपका रेडियस है, 5 मीटर, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5, सॉरी सिग्मा 1 की वैल्यू क्या दी है आपको, 5 वैल्यू दी है, सिग्मा 2 की -2 और सिग्मा 3 की क्या दी है, -3। ओके, और आपको फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ डी, ठीक है। आपको फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि डेंसिटी, डी क्या आपका डेंसिटी। तो सारी वैल्यूज गिवन है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -13/c। तो डी इंटू 2 पाई आर एल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जो कि हमने देखा ये सारी वैल्यूज हैं जो कि गिवन है आपको। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी क्या होता है, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी होता है द एबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम टू रीगेन द स्टेट ऑफ द ऑपरेटिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट व्हेन द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू एनी डिस्टर्बेंस। ओके, नेक्स्ट, व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड एज यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी, ऑप्शंस दिए होंगे। ओके, वी हैव टू सिलेक्ट दैट ऑप्शन। व्हाट काइंड ऑफ ड्राइंग्स represents the direction of electric field intensity in an electric field, lines आपका आंसर है। By using the which component can the transient stability limit of a power system be improved, series capacitor is the answer। so ये आपका क्वेश्चन पेपर खत्म होता है, जो कि था NFL मैनेजमेंट ट्रेनी का।